Hello friends, myself Dr. Kirti Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College Jawar. So friends, I welcome you all for the SYBSc Chemistry Paper 3 in semester 4, and we have started with the first unit, that is method of separation. So friends, in our last lecture we have discussed about the distillation method, which is based on the property volatility. Okay, so we know that every liquid has a particular boiling point, and depending upon that boiling point, two or more miscible liquids can be separated from each other. So using this technique we can have different type of distillation method, like fractional distillation, azeotropic distillation, extractive distillation, vacuum distillation, and finally steam distillation. So depending upon this different technique, we can separate the miscible liquids which have नियर बॉइलिंग पॉइंट्स, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स एक दूसरे के पास है, ऐसे लिक्विड भी हम लोग ये टेक्निक यूज करके सेपरेट कर सकते हैं. ओके, सो टुडे वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टेक्निक विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, सो दिस टेक्निक इज बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टी that is electrical effect. Okay, so this property of the compound or component we can say it is based on electrical effect, और ये जो मेथड है सेपरेशन टेक्निक उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, सो इट इज़ अ सेपरेशन मेथड बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ चार्ज स्पीशीज व्हेन डायरेक्ट करंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड. ओके, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि हम लोगों को दिए हुए मिक्सचर के कंपोनेंट सेपरेट करने, और किस हिसाब से सेपरेट करना है. सपोज यू अप्लाई द इलेक्ट्रिकल फील्ड, then the positively charged component will migrate toward negatively charged electrode, and the negatively charged component will migrate towards positively charged electrode. So this way, because of their charges, they can be separated from each other. So here you have to take a buffer solution for the procedure of your experiment, and you have to apply DC electric field. Okay, so it can be used to separate charged macromolecules like protein, enzymes, hormones and nucleic acid. So it is very essential and very important technique nowadays, because it is also used in DNA sequencing, long chain polynucleotides, which are very similar and they are not easy to separate from each other. उसके साथ साथ हम उसको सेपरेट करने के लिए किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इफ़ यू सप्लाई हीट टू देम देन व्हाट विल हैपन, दे विल गेट रप्चर्ड, और उनकी जो प्रॉपर्टी है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, सारे ख़राब हो जाएंगे. ओके, सो यू कैनॉट सप्लाई हीट, you cannot dissolve them in very harsh solvents. So therefore a technique where their initial or original characteristic will be retained, that type of technique you have to use, and that is achieved through electrophoresis. Okay, तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ चार्ज अप्लाई करना है, and because of that charge the component of the mixture which is itself charged, means they have positive or negative charge on them, they get separated because of electrical field. Okay, so Koenig was the first scientist who separated the proteins from snake venom using electrical current through electrophoresis. तो ये जो साइंटिस्ट था कोनिग, उसने क्या किया, ही सेपरेटेड प्रोटीन्स फ्रॉम द स्नेक वेनम, सांप का जो जहर होता है उसमें से उसने प्रोटीन सेपरेट किए यूजिंग द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. Okay, so an electrophoresis separation is performed by injecting a small band of sample into an aqueous buffer solution that contain in a narrow tube. तो ये experiment कैसे करते हैं ये हम लोग देखते हैं. See, this is the particular arrangement for the experiment. You can see there are two beakers, है ना, देख सकते हो आप लोग. उस बीकर के अंदर देर इज़ अ बफर सोल्यूशन. ओके, और ये बीकर के अंदर भी एक पोरस पार्टीशन रखा हुआ है, देर इज़ अ पोरस पार्टीशन इनसाइड द बीकर. ओके, फिर उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड राइट हैंड साइड वाले बीकर में निगेटिव इलेक्ट्रोड. ओके, सो दीज इलेक्ट्रोड्स आर kept immersed in the buffer solution of the beaker.
फिर उसी के साथ साथ जो दूसरा कंपार्टमेंट है, अभी हम लोग उसको कंपार्टमेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पोरस पार्टीशन इनसाइड दैट बीकर देर आर टू कंपार्टमेंट्स। एक कंपार्टमेंट में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड को रखा हुआ है और दूसरे कंपार्टमेंट में हम लोग क्या करेंगे, वी आर कीपिंग पेपर स्ट्रिप्स। तो आप लोग देख सकते हो कि दोनों बीकर के अंदर इलेक्ट्रोड को छोड़ के जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर हम लोगों ने पेपर स्ट्रिप रखा हुआ है। ओके, एंड दैट पेपर स्ट्रिप इज इनसाइड अ ग्लास प्लेट। दो पैरेलल ग्लास प्लेट्स है, उसके अंदर ये पेपर स्ट्रिप रखी हुई है। ओके, सो दिस वे व्हाट इज़ द good thing about this particular setup is the electrodes are externally connected to the electrical field, और जो पेपर स्ट्रिप है उस पेपर स्ट्रिप के वजह से दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं। सो दिस पेपर स्ट्रिप एक्ट एज वी कैन से सॉल्ट ब्रिज। जैसे सॉल्ट ब्रिज हम लोग यूज़ करते कनेक्शन बनाने के लिए दोनों बीकर के साथ, उसी तरह ये जो पेपर स्ट्रिप है आप लोग देख सकते हो लेफ्ट से लेके राइट तक पूरा एक सिंगल पेपर स्ट्रिप है जो ग्लास प्लेट से होता हुआ जा रहा है ना। तो दोनों के अंदर डीप किया हुआ है एंड in the beaker there is a buffer solution. Okay, so electrophoresis separation के अंदर हम लोगों को क्या करना है, you have to perform the experiment by injecting a small band of sample into the aqueous buffer solution. आपका जो सैंपल होगा जिसको आपको सेपरेट करना है उसे आपको इस पर्टिकुलर बीकर के अंदर लेना है ना। एंड दैट बीकर also contains aqueous buffer solution. So that is contained in a narrow tube, okay, or flat porous support medium such as paper और semi solid gel, है ना। तो हम लोग दोनों में कनेक्शन एक तो पेपर के साथ बना सकते हैं या फिर किसी सेमी सॉलिड जेल के साथ बना सकते हैं। ऐसी जेल जो प्रॉपरली लिक्विड भी नहीं है और सॉलिड भी नहीं है, सो उसे हम कहेंगे सेमी सॉलिड। देन वी हैव टू प्रोवाइड अ हाई डीसी पोटेंशियल अक्रॉस द length of the buffer by means of a pair of electrode located in the beaker. तो इसी के साथ हम लोगों को एक हाई इलेक्ट्रिकल करंट और वो डायरेक्ट करंट होना चाहिए ऐसा हमको प्रोवाइड करना है थ्रू द electrodes which are provided in the beaker. Okay, so this potential causes ion of the sample to migrate toward one or the other electrode. जैसे ही आप ये इलेक्ट्रिक सप्लाई शुरू करोगे क्या होने लगेगा, the sample which is taken inside the beaker it will start migrating opposite of its characteristic और opposite of its charge. तो पॉजिटिव आयंस आपके जो रहेंगे वो निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव के पास जाएंगे। तो आप लोग बोलोगे कि अगर दूसरे बीकर में है मेरे आयंस तो यहाँ पे कैसे आएंगे, सो उसी के लिए हम लोगों ने ये पेपर स्ट्रिप प्रोवाइड की हुई है। सो थ्रू दिस पेपर स्ट्रिप मानो आपके आयन अगर दूसरे वाले बीकर में भी है तो वो भी ये वाले बीकर में आ सकते हैं बिकॉज दे कैन ट्रैवल थ्रू द पेपर स्ट्रिप। ओके, सो द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ द आयंस और वी कैन से द गिवन स्पीशीज डिपेंड अपॉन इट्स चार्ज एंड ऑल्सो अपॉन इट्स साइज। तो जो आपके चार्ज स्पीशीज़ है उसके चार्ज के ऊपर और साइज़ के ऊपर उसका रेट ऑफ माइग्रेशन डिपेंड करता है। सो सेपरेशन आर बेस्ड अपॉन डिफरेंसेस इन चार्ज टू साइज रेशो। तो ये जो रेशो है उसके ऊपर भी उसका सेपरेशन डिपेंड करेगा। अगर ये रेशो अच्छा है, इफ़ द रेशो इज़ लार्ज द सेपरेशन विल टेक प्लेस फास्ट। लेकिन अगर चार्ज टू साइज रेशो कम है तो ऑब्वियसली द सेपरेशन विल टेक टाइम। सो द लार्जर द रेशो फास्टर इज़ द माइग्रेशन एंड वाइस वर्सा। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से ईज़िली हम लोग ये जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट कर सकते हैं। सो इट इज़ द प्रोसेस मेनली यू रिमेंबर इट इज़ अ सेपरेशन इन्वॉल्विंग माइग्रेशन ऑफ चार्ज सब्सटेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो अगर हम लोगों को किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस तो वी कैन से दैट इट इज़ द सेपरेशन ऑफ चार्ज स्पीशीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो फिर ये तो हम लोगों ने सेटअप देख लिया। नाउ व्हाट इज़ द एक्चुअल वर्किंग, हम लोगों ने अभी वर्किंग मतलब प्रोसीजर देखी।
सो हियर व्हाट वी डू एक्चुअली द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको हम लोग एक तो पेपर के साथ कर सकते हैं या फिर सेमी सॉलिड जेल भी ले सकते हैं इनसाइड दिस पर्टिकुलर ग्लास प्लेट्स, है ना, जहाँ से हम लोगों ने पेपर स्ट्रिप डाली हुई है, तो वहाँ पे हम लोग पेपर यूज़ कर सकते हैं और वी कैन ऑल्सो यूज़ जेल। तो ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इज़ द प्रोसीजर यूज टू सेपरेट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बाय साइज। बड़े बड़े जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है उन्हें सेपरेट करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो द सेपरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल इज अचीव्ड बाय प्लेसिंग देम इन अ जेल with small pores and creating an electric field across the gel। मतलब हम लोग एक तो डायरेक्ट बीकर में ही सैंपल डाल सकते हैं या जो प्लेट है, जो प्लेट हम लोगों को प्रोवाइड किया है ग्लास प्लेट, उसके अंदर भी हम लोग इस पर्टिकुलर सैंपल को रख सकते हैं। द मॉलिक्यूल विल मूव फास्टर और स्लोअर बेस्ड अपॉन देयर साइज एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो जितना चार्ज टू साइज रेशियो अच्छा होगा उस हिसाब से हम लोग ईजी सेपरेशन पा सकते हैं। ओके, सो हियर द जेल मे बी फिल्ड इन अ ग्लास कॉलम एंड कॉलम इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज। सो ये जो मेथड है जहाँ पे हम लोगों ने पेपर स्ट्रिप यूज़ की हुई है उसी जगह पे हम लोग ग्लास और जेल जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ मोर एडवांस टेक्निक एंड मोर इजी वी ऑब्टेन द रिजल्ट। ओके, तो जब हम लोगों को ये एक्चुअल जेल टाइप प्रोसीजर करना पड़ता है तो इन दैट केस वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ जेल्स। ओके, सो दीज जेल्स कैन बी मेड अप ऑफ agarose or polyacrylamine। okay, so agarose gels have a large range of separation। okay, लेकिन उनकी जो रिजोल्यूशन पावर है, जो सेपरेशन पावर है वो कम है, इसीलिए उनको डीएनए सेपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। फिर जो पॉलीएक्रिलामाइड जो है दैट टाइप ऑफ जेल हैव स्मॉल रेंज ऑफ सेपरेशन बट वेरी हाई रिजॉल्विंग पावर। तो मतलब सेपरेशन का रेंज छोटा है, थोड़े से ही कंपाउंड को सेपरेट कर सकता है, लेकिन जो सेपरेशन पावर है वो बहुत अच्छी है। सो देयरफॉर पॉलीएक्रिलामाइड कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड कैरेक्टराइजिंग द मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं एंड दे हैव डिफरेंट टाइप्स इन देम। सो देयरफॉर टू सेपरेट द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वी कैन यूज polyacrylamide type of gel। okay, so this type of experiment, electrophoresis experiment, is carried out on a relatively inert support medium such as paper or agar agar gel or cellulose acetate or acrylamide। तो ये जो हम लोग यहाँ पे पेपर देख रहे हैं जो लेफ़्ट से राइट दोनों बीकर में अटैच हुआ है, उस पेपर के जगह पे हम लोग कभी कभी क्या यूज़ कर सकते हैं, agar agar gel or cellulose acetate, or also we can use acrylamide। okay, the strip suitable supported dips in it end into the beaker containing buffer solution। okay, तो before starting the experiment हम लोगों को क्या करना है, the strip is soaked in the buffer solution and the sample जिसको हमको separate करना है उसको हम लोगों को beaker में लेना है। so at some point of the strip is thin line, तो ये जो लाइन है हम लोग देख सकते हैं पेपर की, इट इज़ इमर्स्ड इनसाइड द बीकर। ओके, फिर हम लोगों को जो दोनों इलेक्ट्रोड है उसके अंदर डीसी करंट सोर्स अप्लाई करना है। ओके, देन व्हाट विल हैपन, स्लोली द करंट विल गेट पास एंड देयर विल बी सेपरेशन ऑफ द चार्ज मॉलिक्यूल्स और चार्ज आयन फ्रॉम ईच अदर। द सेपरेटेड सब्सटेंस अपीयर एज अ सीरीज ऑफ बैंड्स whose direction and distance from the origin depends upon the charge of ion as well as its mobility in applied जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर। उसी तरह से जो बफर सॉल्यूशन हम लोगों ने यूज़ किया है उसके अंदर भी उसका सेपरेशन डिपेंड करता है। ओके, सो दिस वे द सेपरेशन ऑफ द molecular species like protein or nucleotide is very easy using the electrophoresis method। okay, फिर हम लोग देखेंगे कि what are the different applications of electrophoresis। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि how to carry out the experiment, तो अभी हम लोगों को समझ में आ गया है कि you have to take the sample and apply the direct electrical field
और उसके साथ साथ हम लोगों को पेपर स्ट्रिप या सेमी सॉलिड जेल यूज़ करनी है. सो यूजिंग दिस टाइप ऑफ टेक्निक वी कैन सेपरेट द generally biological samples. Okay, so for handling large volume of sample, a continuous electrochromatography system is used. Okay, so the separation are performed by simultaneous flow of an electrolyte and electrical migration. So this way you can separate the large macromolecules of protein or nucleotide or generally biological sample यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है? इट इज़ यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. तो हम लोगों को पता है कि इन केस ऑफ सेल बायोलॉजी लेबोरेटरी देर इज़ वन डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ यूज फॉर मोस्ट ऑफ द रूटीन प्रोटीन सैम्पल्स और समटाइम टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिंगर प्रिंटिंग ऑफ प्रोटीन. तो कौन सा फिंगर प्रिंटिंग का मीनिंग क्या है कि जैसे हम लोगों के फिंगरप्रिंट्स दूसरे से मैच नहीं होते, उसी तरह प्रोटीन्स ऑल्सो हैव अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक. तो ये प्रोटीन भी दूसरे से मैच नहीं होते, दैट इज़ कॉल्ड एज फिंगर प्रिंटिंग. तो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिसाइड करने के लिए हम लोग टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ कर सकते हैं. Then the second application is separation of sugar molecules, DNA, RNA, purines, pyrimidines, nucleotides and inorganic ion also. तो ये जो मेथड है हम लोग अलग अलग टाइप के शुगर मॉलिक्यूल्स, उसी तरह सम डाइस्टर्ब्स, प्यूरिन, pyrimidines, अमीनो एसिड्स, इनको सेपरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. The large DNA molecule can be cut into smaller segment before separation by electrophoresis. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डालने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो बड़े बड़े डीएनए मॉलिक्यूल है उनको पहले ब्रेक कर लेते हैं, है ना. तो ऐसे कहा जाता है कि हमारे ओवरऑल बॉडी में जो डीएनए स्ट्रैंड्स है वो इतने लंबे हैं कि पूरी अर्थ में वो फैलाए जा सकते हैं. मतलब अगर हम कोई धागा ले और उसको एक बॉल की तरफ लपेटे, है ना, तो कितना धागा लगेगा. उसी तरह से अगर एक इंसान के बॉडी में से ये डीएनए स्ट्रैंड्स निकालेंगे और उसको अर्थ के ऊपर भी हम लोग रोटेट करना शुरू करेंगे तो भी वो कंप्लीट हो जाएगा. सो इतने सारे डीएनए स्ट्रैंड्स हमारे बॉडी में होते हैं, तो इसीलिए उनको पहले स्मॉल पीस में कट करना है एंड देन यू हैव टू अप्लाई द इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक. स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ट्रैवल फास्टर इन द जेल, और जो अगर बड़े मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली वो स्लो मूव करेंगे. तो इसीलिए फॉर बेटर सेपरेशन उनके छोटे छोटे पीसेस यूज़ करते हैं हम लोग. द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन जेल कंपोजिशन एंड ऑल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो जो सेपरेशन है वो जेल के ऊपर, आपके कंपाउंड के ऊपर, एज वेल एज जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपने यूज़ किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है. So mostly separation of molecule in cell biology labs, the electrophoresis method is applied. So this way it is very important and a very interesting method where you don't have to disturb your sample, है ना. sample के characteristic कम नहीं होते, destroy नहीं होते, उसकी physical और chemical property भी वैसी की वैसी रहती है, but you can get or you can achieve proper separation out of that. Okay, so this is the beauty of your electrophoresis technique. Okay, so the next technique is separation method based on the capacity, which is based on exchange with a resin. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोगों ने देखा कि ये जो टेक्निक है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती थी, ऑन इलेक्ट्रिकल चार्ज. तो अभी जो नेक्स्ट टेक्निक है वो हम किसके ऊपर, कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, इट इज़ कैपेसिटी टू एक्सचेंज विथ अ रेजिन. एक्सचेंज मतलब क्या है, देखो मेरे पास एक चीज़ है वो मैं आपको दे रही हूँ और उसके बदले में आपसे एक चीज़ ले रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सचेंज. तो हर एक मॉलिक्यूल और हर एक कंपाउंड के पास भी ये प्रॉपर्टी होती है, दे गेट एक्सचेंज विथ ईच अदर. एंड नाउ वी हैव टू स्टडी द एक्सचेंज विद अ रेजिन. तो ये रेजिन क्या होते हैं, रेजिन इज़ नथिंग बट सम molecules or ions which are fitted on a glass beads.
छोटे छोटे ग्लास के बॉल्स के ऊपर, एकदम छोटे बॉल के ऊपर उनको फिट किया जाता है एंड दे आर फिल्ड इन अ कॉलम, उनको कॉलम के अंदर फिट कर देते हैं. देन दैट कॉलम इज़ यूज्ड एज आयन एक्सचेंज कॉलम. ओके, तो ये जो आयन एक्सचेंज कॉलम है उसके अंदर अगर हम किसी चीज़ को डालेंगे तो वो अपने आयन उसको दे देगा और उसके आयन अपने पास रख लेगा. सो दैट इज़ कॉल्ड एज आयन एक्सचेंज टेक्निक. So how this ion exchange technique works and how it is applied in our chemistry, that we will discuss in our next lecture. Till that, you take care and stay safe. Thank you.